اگر تھوڑا سا رد وہابیہ کی طرف بھی توجہ فرما لے، رد روافض کی طرف بھی توجہ فرما لے، اس لیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب عقیدے پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو تو ایسے ماحول میں رد وہابیہ فرض اعظم ہے، اور آج کے زمانے میں لوگوں کو رافضیت اور نیم رافضیت کی طرف ڈھکیلا جا رہا ہے تو اس کا بھی رد کرنا ضروری ہے۔ حضرت کی تقریر کے بعد حضرت علامہ مولانا مفتی شہزاد صاحب قبلہ مدد اللہ العالی نے فضیلت سیدنا صدیق اکبر کے تعلق سے ایک بہت روح پرور خطاب فرمایا۔ فاضل بغداد نے بھی ایک بہت اچھی تقریر فرمائی۔ ہم الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اعلی رسول کو بھی مانتے ہیں، اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں۔ ہمیں ہمارے اعلیٰ حضرت نے جو شجرہ دیا ہے اس میں یہ سبق دیا ہے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر ہے مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقرے علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں آل رسول کی محبت کیوں سکھائی؟ حضرت ابو ذر کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی سید عالم کے چہیتے صحابی خانے کعبہ میں گئے اور کعبہ شریف کے دروازے کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا اور فرمایا سنو، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے اہل بیت کے مثال کشتی نوح کی طرح ہے جو سوار ہو گیا پار ہو گیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں آل رسول کی ایک دن کی محبت، آل رسول کے ایک دن کی محبت 1000 سال کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ الحمدللہ ہم آل رسول سے محبت کرتے ہیں۔ آج ذات گرامی کا آپ عرس منا رہے ہیں، ان کا نام احمد رضا ہے، ان کے دادا کا نام نقی، والد کا نام نقی علی خان ہے، ان کے دادا کا نام رضا علی خان ہے، ان کے پردادا کا نام کاظم علی خان ہے۔ احسان الہی ظہیر نے جو خارجیوں کا بہت بڑا گرو گھنٹال ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام البریلویہ رکھا ہے۔ اس کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ معاذ اللہ 100,000 بار معاذ اللہ، لکھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت شیعہ تھے اور ثبوت میں اس نے 2 باتیں بیان کی ہے۔ پہلی بات تو یہ اگر شیعہ نہ ہوتے تو اپنا نام احمد رضا نہ رکھتے، اگر شیعہ نہ ہوتے تو والد کا نام نقی علی نہ ہوتا، اگر شیعہ نہ ہوتے تو دادا کا نام رضا علی نہ ہوتا، اگر شیعہ نہ ہوتے تو پردادا کا نام معظم علی نہ ہوتا، اگر شیعہ نہ ہوتے تو اپنے بیٹے کا نام حامد رضا نہ رکھتے، اگر شیعہ نہ ہوتے تو اپنے دوسرے بیٹے کا نام مصطفیٰ رضا نہ رکھتے۔ سب کے نام میں رضا شامل ہے، اس لیے یہ شیعہ ہے۔ اور دوسری دلیل یہ تھی کہ وہ امام والوں کا رافضیوں کے مدد کرتے ہوئے نام رکھا کرتے تھے۔ وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے کوئی بات بتاؤں، صرف ایک بات سن لیجئے، میرے اعلیٰ حضرت کی پیدائش 1272 ہجری میں ہوئی ہے، 1284 ہجری میں اسی بریلی شریف میں کچھ سنیوں نے ایک امام باڑہ بنایا۔ آج بھی سنی امام باڑہ بناتے ہیں مگر ایمان بگاڑا نہیں بناتے ہیں۔ سنی جو بناتے ہیں وہ امام باڑہ بناتے ہیں، اور یہ روافض جو بناتے ہیں وہ ایمان بگاڑا بناتے ہیں۔ مگر اعلیٰ حضرت کی نگاہ ولایت نے دیکھ لیا تھا 1284 ہجری میں جب بریلی شریف میں امام باڑہ لوگوں نے بنوایا، اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، کہا حضور ہم نے امام باڑہ بنوایا ہے، آپ اس کا نام رکھ دیجئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا در رفض نام رکھ دو، در رفض نام رکھ دو، در رفض نام رکھ دو۔ اب انہوں نے سوچا رفض کا نام اگر ہٹ جاتا تو بہت اچھا تھا، اعلیٰ حضرت تو تاریخی نام رکھتے تھے۔ کہنے لگے حضور تیار تو اب ہوا ہے مگر اس سے پہلے ہی پچھلے سال تقریباً بیشتر کام مکمل ہو گیا تھا، اس لیے کوئی ایسا کام رکھا ہے، کوئی ایسا نام رکھا ہے کہ 1284 کے بجائے 1285 عدد نکل آئے۔ فرمایا دار رفض رکھ دو۔ کہا حضور مگر بنیاد
तो 2 साल पहले पढ़ी थी, फरमाया बदरे रिफ्ज रख दो। मैं पूछना चाहता हूँ सारे वहाबियों से कि तुम्हारे धर्म पे लानत हो, कितने बड़े बदबख्त हो। कहते हो आला हजरत अगर राफजी ना होते तो इमाम वाले का नाम क्यों रखते? अरे नाम क्या रखा था, कम से कम वो भी तो बता देते, वो भी तो बता देते कि आला हजरत ने वहाबियत और राफजियत का कैसा खिलाफत फरमाया। फरमाया दरे रिफ्ज नाम रख दो, दारे रिफ्ज नाम रख दो, बदरे रिफ्ज नाम रख दो। और सुनो ये कितने बड़े झूठे होते हैं। यही एहसान इलाही ज़हीर है, वो अपनी किताब अल बरेलविया में, और ये भी सुन लीजिए दुनिया की 20 से ज्यादा जबानों में अल बरेलविया का तर्जुमा हुआ है, लाखों की तादाद में। अल बरेलविया को सऊदी हुकूमत ने छपवा के मुफ्त में बांटा है, हिंदुस्तान के वहाबियों ने भी इस किताब को मुफ्त में बांटा है। मेरे सरकार ताजुल शरिया ने अरबी में इसका जवाब लिखा है। कितने बड़े ये झूठे हैं, सिर्फ एक बात में अर्ज कर दो उससे इनका झूठ आश्कारा हो जाए। एहसान इलाही ज़हीर लिखता है कि मौलाना अहमद रजा खां का रंग बिल्कुल काला था। रंग काला या गोरा होना कोई फजीलत की बात नहीं है। कहता मौलाना अहमद रजा खां का रंग बिल्कुल काला था, और आज भी उनके खानदान में जितने लोग हैं सबका रंग बिल्कुल काला होता है। उसी नजरी में आने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप में से कितने लोगों ने हुजूर ताजुल शरिया को देखा है? जरा हाथ उठा दीजिए। सुभान अल्लाह। अब आप बताओ हुजूर ताजुल शरिया का रंग काला था कि गोरा था? अभी हजरत मौलाना सैफुल्लाह अलीमी ने एक वाकया बयान फरमाया है, तो हुजूर सैयदी सरकार ताजुल शरिया को आपने देखा, शहजादे ताजुल शरिया कायदे मिल्लत अल्लामा असद रज़ा साहब को आप देखिए। और ये इत्तेफाक ही है कि आला हजरत के खानवादे में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसका रंग काला हो। और एहसान इलाही ज़हीर लिखता है कि मौलाना अहमद रजा खां का रंग बिल्कुल काला था, और आज भी उनके खानदान में जितने लोग हैं उनका रंग काला होता है। अब मुझे कहने दीजिए इस जमाने में सबसे बड़ा झूठा ये वहाबी तबका है, और इन्होंने झूठ अपने किताबों में लिखा है। इसलिए शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम रसूल, उस बड़े मजहब पे लानत कीजिए। आज आला हजरत के इसूस के मौके पर एक बात अर्ज करके मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। आप ये बताइए मदीना तैयबा आप जाना चाहते हैं? कितने लोग? अल्लाह, जितने लोग सरकार आला हजरत के उर्स में आए हैं उन्हें अपने नबी के दरबार की जियारत नसीब कर दे। अच्छा, सरकार के दरबार में जब जाएंगे तो सरकार से फरियाद करेंगे कि नहीं करेंगे? कितने लोग फरियाद करेंगे? जरा हाथ उठाइए। सब फरियाद करेंगे। अच्छा, जब सरकार के दरबार में जाएंगे तो आप अपने आका से जब फरियाद करेंगे तो अपनी जबान में करेंगे या जामिअतुर रज़ा के किसी उस्ताद को, हजरत अल्लामा गुलजार साहब को कहेंगे हुजूर आपकी अरबी बहुत अच्छी है, आप हमारे साथ चलिए, आकाए करीम की बारगाह में हमारी तरफ से फरियाद कर दीजिए। आप कहोगे जी नहीं, हमारी जो भाषा है, जो हमारी जबान है, हम उसमें आका से फरियाद करेंगे। और खाली ये बरेली शरीफ वाले नहीं जाते हैं, अब बंगाल वाले भी जाते हैं, उड़ीसा वाले भी जाते हैं, कर्नाटक वाले भी जाते हैं, और महाराष्ट्र वाले भी जाते हैं। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। सब सरकार की बारगाह में जाते हैं, अपनी अपनी भाषा में सरकार की बारगाह में फरियाद पेश करते हैं। मगर सुनो, किताब का नाम है बराहीन कातिया, लिखने वाले का नाम है खलील अहमद अम्बेठवी, रशीद अहमद गंगोही। उस किताब में लिखता है कि एक मर्द सालेह ने ख्वाब में रसूलुल्लाह की जियारत की और सरकार को उर्दू बोलते हुए जब सुना तो कहने लगे कि आप तो अरबी है, आपको ये उर्दू जबान कहाँ से आ गई? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया जब से उलमाए मदरसा देवबंद से हमारा राबता हुआ हमें ये उर्दू जबान आ गई है। मादल्ला कह दो मुसलमानों, मादल्ला, जोर से बोलो मादल्ला। ये देवबंद के पागल, ये नजदी वहाबी ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह को उर्दू नहीं आती थी। देवबंद के मुल्लाओं ने रसूलुल्लाह को उर्दू सिखा दिया है, उर्दू जबान सिखा दी है। मैं सारे देवबंदियों से पूछना चाहता हूँ, चलो उर्दू तो तुमने सिखा दिया है, तो बंगाली किसने सिखाया है?
मराठी किसने सिखाया है, उड़िया किसने सिखाया है, पंजाबी किसने सिखाया है, भोजपुरी किसने सिखाया है, सुरजापुरी किसने सिखाया है, हिंदी किसने सिखाया है, अंग्रेजी किसने सिखाया है, फारसी किसने सिखाया है। तुम कहते हो रसूलुल्लाह उर्दू नहीं जानते थे, देवबंद के मौलाना लोगों ने रसूलुल्लाह को उर्दू सिखा दिया। ये मुकद्दस उलमा बैठे हैं, अबू दाऊद शरीफ में एक ऊंट पागल हो गया, सहाबा ने सरकार से आके कहा, सरकार तशरीफ ले गए, पागल ऊंट जो सबको काटने के लिए दौड़ता था, सरकार को देखा तो सरकार के सामने सजदे में गिर गया और अपना मुंह उठाकर सरकार के कान शरीफ के करीब ले गया। कुछ सरकार से कहा, सरकार ने मुड़ के सहाबा की तरफ देखा, फरमाया ये बताओ इस ऊंट का मालिक कौन। एक सहाबी ने कहा ये ऊंट मेरा है। फरमाया ये ऊंट मुझसे तुम्हारी शिकायत कर रहा है। या रसूलल्लाह क्या शिकायत कर रहा है? ऊंट कह रहा था जब तक मैं जवान था मेरा मालिक जितना बोझा लादता मैं उठाता, जितना काम चाहता मैं करता, मगर अब मैं कमजोर हो गया, ज्यादा काम करने की ताकत रही, बोझ उठाने की सलाहियत रही, मगर मेरा मालिक बोझा भी ज्यादा ला देता है, काम ज्यादा लेता है। आप उससे कहिए वो मेरे ऊपर जुल्म ना करे। तिरमिज़ी शरीफ में है, सरकार जा रहे, पीछे पीछे दो सहाबी जा रहे, एक चिड़िया उड़ती हुई आई, सरकार के कान शरीफ के करीब अपनी चोंच ले गई। तो सरकार से कहा, सरकार ने पीछे मुड़ के पूछा, बताओ इस चिड़िया के बच्चे को किसने पकड़ा? एक सहाबी ने कहा मैंने पकड़ा। फरमाया ये चिड़िया मुझसे तुम्हारी शिकायत कर रही थी, आपके सहाबी ने मेरे बच्चों को पकड़ लिया, आप उनसे कहिए मेरे बच्चों को छोड़ दे, आप तो रहमतुल लिल आलमीन है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, हाँ यही करती है चिड़िया फरियाद, हाँ यही चाहती है हिरनीदा, इसी दर पर सुतराने ना था गले रंजो ना करते हैं। मैं सारे वहाबियों से पूछना चाहता हूँ, तुम कहते हो रसूलुल्लाह को उर्दू नहीं आती थी, देवबंद के मौलाना लोगों ने सिखा दिया, तो जरा ये भी तो बता दो उर्दू तो देवबंद के मुल्लाओं ने सिखाया, ये चिड़िया की बोली किसने सिखाया है, ऊंट की बोली किसने सिखाया है, हिरनी की बोली किसने सिखाया है, मराठी किसने सिखाया है, पंजाबी किसने सिखाया है, गुजराती किसने सिखाया है। अरे सुनो सुनो, तुम कहते हो रसूलुल्लाह उर्दू नहीं जानते थे, देवबंद के मौलाना लोगों ने सिखा दिया, और अल्लाह कहता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ मेरे मुस्तफा, आप जो नहीं जानते थे आपके परवरदिगार ने आपको सब सिखा दिया। अब बोलो मुसलमानों, जो सरकार के बारे में इतना गंदा अकीदा रखे वो मोमिन है कि काफिर? जोर से बोलो, कितने लोग काफिर मानते हैं? अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी, खलील अहमद अम्बेठवी ने अपनी किताबों में तौहीन बकी है। इसलिए सरकार आला हजरत के इस्तिफ्सार पर अरब शरीफ के उलमा ने उन्हें काफिर और मुर्तद लिखा। मेरे पीरो मुर्शिद शेरे बेशे सुन्नत मजहर आला हजरत ने अस्वारिमुल हिंदिया में 265 उलमा से ज्यादा तस्दीकात करवाई और सबने बता दिया मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फक़द कफ़र। जो मेरे नबी की बारगाह में तौहीन करे, ऐसे तौहीन करने वाले इन मुल्लाओं को जो काफिर न माने वो खुद काफिर हो जाएगा, जो इनके कुफ्र में शक करे वो काफिर हो जाएगा। इसलिए सरकार ताजुश शरिया के उसमें आने वालों, चलते चलते आखिरी बात मैं आपसे चाहता हूँ, ताजुश शरिया के आस्थाने के सामने बैठकर हाथ उठा के वादा कर लो, किसी वहाबी से सलाम तो नहीं करोगे, किसी देवबंदी से सलाम तो नहीं करोगे, किसी राफजी से सलाम तो नहीं करोगे। नबी के जितने गद्दार है, सहाबा के जितने दुश्मन है, उनसे कोई ताल्लुक तो नहीं रखोगे। सरकार ताजुश शरिया की वसीयत सुन लो, नबी से जो हो बेगाना, नबी से जो हो बेगाना, नबी से जो हो बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दो, पितर मादर बिरादर मालो जानून पर फिदा कर दो।